وہی اس کو آپریٹ کرے گی اور وہی اگلے 5 سال کی وارنٹی دے گی. تو ماشاءاللہ یہ 5 سال کے لیے ان 3 بڑی شاہراہوں کا کام ہم نے مکمل کر لیا ہے. اور آج جو بندہ اس سڑک سے گزرے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ سڑک کے ایم سی کی ہے, یہ سڑک کراچی کنٹونمنٹ کی ہے, یہ سڑک کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کی ہے, یہ سڑک فلاں ٹاؤن کی ہے, فلاں ادارے کی ہے. یہ شہر کراچی کی سڑک ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو ہم نے کہا چلیں کوئی اور کام کرے نہ کرے, ہم یہ کام کر کے دیتے ہیں. اور اب آپ کو یہ پوری چیز الحمدللہ بہترین طریقے سے نظر آتی ہے. اس کے 2 فائدے ہمیں حصول ہوں گے. پہلی چیز, سالانہ 2.5 کروڑ روپے کا جو بجلی کا بل تھا ہمارا, اس میں کمی آئے گی. یعنی کہ کے ایم سی ہر سال 2.5 کروڑ روپے سیو کرے گی. ترقیاتی کاموں میں یا کسی اور جگہ پہ اسی طرح کی لائٹ لگانے کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو تیل کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جب آپ کسی جگہ سے گزرتے تھے اور آپ کو لائٹیں بند نظر آتی ہیں تو آپ کہتے تھے کہ ایم سی ناکام ہو گئی, یہ روشنیوں کا شہر ہے لیکن روشنی آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو اب لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا کہ یہ آٹومیٹکلی جیسے ہی اندھیرا ہوگا یہ لائٹس آن ہوں گے, اور آپ ہر پول پہ دیکھیں گے کہ آپ کو 4 لائٹس ہم نے لگا کے دی ہیں. اور اسٹریٹجی یہی ہے کہ 4 لائٹس ہم استعمال اس طرح کریں گے کہ رات بھر وہ لائٹیں چل سکیں اور لوگوں کو جو روشنی کا مسئلہ تھا وہ ریزالو ہو سکے. تیسری جو سب سے اہم چیز ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کلین اور گرین انرجی کی طرف جا رہی ہے. ہم کلائمیٹ چینج کی تو سب بات کرتے ہیں, لیکن عملی طور پر کام آپ کو پاکستان کے واحد کاؤنسل ہے ہم اپنی اسٹریٹ لائٹس کو ٹرانزیشن کر رہے ہیں, ہم اپنے پمپنگ اسٹیشن کو سولر کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا جو بجلی کا بل ہے اس میں بھی کمی آ سکے, اور ہمارا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے یعنی کہ ماحول دوست سرگرمی جب ہم کہتے ہیں تو ماحول دوست سرگرمی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی سے جو دھواں نکلتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے یا صرف درخت لگانے ہیں. آپ کو اس ماحول دوست سرگرمی میں آپ کو اپنے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنا ہے, ریڈیوس کرنا ہے. تو الحمدللہ اس انٹرونشن سے آپ کو اب کاربن فٹ پرنٹ میں کمی ہوتے ہوئے نظر آئے گی. ایک اور اعلان میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نیکسٹ فیز میں جو ہماری مائی کلاچی روڈ ہے, سر شاہ سلیمان روڈ ہے جو کہ کارساز سے سٹارٹ ہوتی ہے اور حسن اسکوائر سے ہوتی ہوئی ڈسٹرکٹ سینٹر سے ہوتی ہوئی ایونچولی سائٹ انڈسٹریل ایریا جاتی ہے, اس کو بھی ہم فیزز میں ٹیک اپ کرنا چاہیں گے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے. اور اسی طریقے سے ہم اور مختلف جگہوں پہ جو لائٹس اب لگانے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم ترجیح اپنی سولر لائٹس کو کر رہے ہیں, لیکن ہم سولر لائٹس کو اس پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپریشن اور وارنٹی یعنی کہ مینٹیننس جو ہے ہم آؤٹ سورس کر سکیں تاکہ یہ شکایت نہ ہے کسی کو کہ آج انجینئر نہیں تھا, آج ایکسین نہیں تھا, آج گاڑی خراب تھی. یہ پرائیویٹلی سارا ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس کو سسٹین کریں گے. میں ایک بار پھر دہرانا چاہوں گا کہ یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ہے, یہ سال بہتری کا سال ہے, یہ سال اچھے اچھے کام اس شہر میں ہونے کا سال ہے. اور ابھی سال کی ابتدا ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے چیزوں کو کرنا شروع کر دیا جس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ہم سنگ بنیاد بھی رکھ رہے ہیں نئے پروجیکٹس کا, اور جو پرانے کام ہیں ان کو ہم ختم بھی کرنے چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کی خدمت ہم بھرپور طریقے سے کر سکیں. یہ میری دعا ہے پروردگار سے, یہ میری کمٹمنٹ ہے کراچی والوں سے کہ ایک ایک وعدہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اپنے منشور میں, انتخابی منشور میں کیا ہے, اس وعدے کو ہم پورا کریں, اس وعدے کی ہم تکمیل کریں. اور جو ہمارا بنیادی ٹارگٹ ہے کہ کراچی والوں کی خدمت کی جا سکے, کراچی والوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے, وہ انشاءاللہ بلدیہ عظمیٰ کراچی بلا تفریق طریقے سے کام کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی سوچ کے مطابق کام کرتے ہوئے انشاءاللہ مسائل کو حل کرے گی. اور کوشش کریں گے ہم کہ لوگوں کے دلوں کو جوڑیں,
कोशिश करेंगे कि लोगों को साथ इकट्ठा करें। मेरे साथ पीटीआई के दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, मेरे पीपल्स पार्टी के साथियों के साथ। टारगेट ये है हर किसी को साथ लेकर चलें ताकि शहर कायद की बेहतर तरीके से खिदमत कर सकें। कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों को छुट्टी दूंगा, कल मैं आपको किसी प्रोजेक्ट पे नहीं बुलाऊंगा। परसों इंशाल्लाह 2 और प्रोजेक्ट्स हैं जो किमाड़ी में मैं करने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह परसों मैं आपको किमाड़ी बुलाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किमाड़ी के अंदर कौन कौन सा काम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदे किमाड़ी की आवाम के लिए कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, जिससे किमाड़ी की आवाम के बुनियादी मसाइल इंशाअल्लाह हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे। मेरे साथ ओल्ड सिटी एरिया के भी यूसी चेयरमैन साहिबान खड़े हैं, तो मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान चौक को बेहतर करने का काम भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। शारे लियाकत बर्न्स रोड का काम तो हमने स्टार्ट कर दिया है और तेजी के साथ काम चल रहा है और इंशाअल्लाह इस काम को मजीद तेजी के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। सोराब गोड टाउन से हमारे यूसी चेयरमैन साहब मौजूद हैं। सोराब गोड के अंदर जो सबसे बड़ा उनका नाले का मसला है उसको भी हम हल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वादा किया था, हमने बजट में, मैं सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बजट में इस बात को मंजूर किया और इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज में उसकी प्रोक्योरमेंट कर ली जाएगी और उसके काम का आगाज कर दिया जाएगा। आखिर में अच्छी खबर यह है कि शारे भुट्टो का भी जो काम है वो तेजी के साथ चल रहा है और जो गार्डर्स कास्ट होने थे हमारे मुर्गी खाना ब्रिज के ऊपर से वो कास्ट होना शुरू हो गए और इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट है कि उसको हमें जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है, उस काम को भी जल्दी मुकम्मल करके शारे भुट्टो फ्रॉम कयूमाबाद टू काठौर वो हम खोलेंगे और इसी क्वार्टर में इंशाल्लाह साल 2026 के क्वार्टर में मुकम्मल करके उसको सिर्फ कराची के लिए नहीं, उसका फायदा हैदराबाद को भी होगा, उसका फायदा सक्खर वालों को भी होगा, उसका फायदा मुल्तान, लाहौर, सियालकोट, पेशावर जो ट्रैफिक जाती है उसको भी होगा। जो शहर के अंदर से ट्रैफिक गुजरती थी वो ट्रैफिक शहर के अंदर से नहीं गुजरेगी और बाहर से होती हुई ऑल द वे सुपर हाईवे पहुंचेगी। तो इंशाअल्लाह बिलावल साहब के एक एक वादे, एक एक मंशूर के ऊपर हम अमल पे रहे हैं और इंशाअल्लाह उस चीज़ को हम ख़त्म करके देंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मजीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पहले कहती हूँ सर, लेकिन एक बड़ा अहम सेंट्रल में जो करीमाबाद अंडरपास है उसके लिए आपने कई बार तारीखें दी हैं, तो कभी का दिसंबर में हो जाएगा, अब जनवरी भी आ गया, तो कब उसको अब कर देंगे? अब उसकी यार कई बार तशी करूँ आपकी कथा कलामी माफ, कई बार नहीं, एक बार ही डेट दी थी और वो मैंने 30 सितंबर की डेट दी थी। 30 सितंबर की मैंने खुद डेट दी थी और 30 सितंबर की डेट इसलिए दी गई थी कि जो पैसों के मसाइल थे उसके बजटिंग के वो हमने रिजॉल्व कर लिया। बारिश हुई, वहाँ पानी भरा और के इलेक्ट्रिक और सुई गैस की यूटिलिटीज को रिप्लेस करने का काम था, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई। काम तेजी से चल रहा है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं, कारपेटिंग का काम वहाँ हो रहा है, जो सुई गैस की लाइंस थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है और जो के इलेक्ट्रिक की लाइन है 4-5 जगहों पे उसको इंशाल्लाह आइंदा 3 से 4 रोज में मुकम्मल कर दिया जाएगा। मुझे वहाँ की टीम ने यकीन दहानी कराई है कि जैसी के इलेक्ट्रिक काम खत्म करती है उसके 30 रोज के अंदर उस काम को मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल देंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फरवरी के पहले हफ्ते में उस काम को मुकम्मल कर दिया जाएगा। देखिए मैं डेट देते हुए, मैं खुद इंजीनियर नहीं, मैं खुद काम नहीं कर रहा, मेरा काम है उसको सुपरवाइज करना, उसको पुश करना। जो चैलेंजेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको रिजॉल्व करना, वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी डिले होता है जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि ये डिले कोई जानबूझ के नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी एट टाइम्स हो जाती है, तो इंशाल्लाह वो चीज़ें राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और इंशाल्लाह उसको हम ख़त्म करके जो वहाँ की आवाम का एक देरीना मसला है उसको हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे इंशाल्लाह। और इतवार का जो दिन है उसकी बड़ी सियासी अहमियत हो गई है पाकिस्तान में। अमीर जमात इस्लामी ने आज फिर इल्जाम लगा दिए, आप जो इफ्तिताह कर रहे हैं मनसूबों का, वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी दुश्मनी पे उतरी हुई है। आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे खुशी होती कि मेरे बड़े भाई, मेरे बुजुर्ग अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब कराची में परमानेंटली बैठते, अपनी यूसी में बैठते, अपने शहर में, अपने टाउन में बैठते और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बुलाते और कहते
कि मियाँ आओ मैं बताता हूँ, मैंने नाजमाबाद की फला सड़क बना दी, मैंने बहादराबाद की फला सड़क बना दी, मैंने चांदनी चौक की फला सड़क बना दी, मैंने फेडरल बी एरिया की लांडी की कोरंगी की फला सड़क बना दी। मुझे दिली खुशी होती, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो वीकेंड पर आते हैं और वीकेंड पर या तो एहतजाज करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कराची के मसाइल हल हो रहे होते ना, तो आज हम चांद पे पहुंच चुके होते। क्योंकि आपको पता है कि चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फारूक सत्तार साहब हों, जमात इस्लामी के नईम उर रहमान साहब या मुनीम जफर साहब हों, इनको मलका हासिल है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे। लेकिन मेरा ये मानना है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें लेकिन डेवलपमेंट ओरिएंटेड करें ना। मैं आता हूँ, मैं चाहूँ तो आपको अपने दफ्तर रोज बुलाऊं और सियासी बात करूं, लेकिन मैं जब आपको मदऊ करता हूँ, जब बुलाता हूँ, किसी तरक्याती काम के लिए बुलाता हूँ कि यार ये मैंने काम किया है, ये काम मैं करना चाह रहा हूँ। अगर मैंने कल आप लोगों को बुलाया तो मैंने होती मार्केट पर बुलाया था, अगर मैंने आज आपको बुलाया तो यहाँ पे मैंने आपको बुलाया कि शमसी तवानाई का हमने काम कर दिया। मैं खुदारा इन तमाम अपने सियासी रुफका हों या मुखालफिन हों, है तो मेरे शहर के, उनको मैं कहता हूँ यार काम पर तरजीह दें, बातों पर तरजीह ना दें। काम करके बात करेंगे ना तो शहर का भी भला होगा, शहर के आवाम का भी भला होगा। लेकिन ये काम किए बगैर बात करना जो है ना, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब अमल है और इसको जितना कम किया जा सकता है वो कम किया जाए। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है करें, लेकिन लोगों को बताएं कि आप काम क्या कर रहे हो। कब तक तासुब का कार्ड खेलोगे, कब तक तनकीद का कार्ड खेलोगे, कब तक तफरीक का कार्ड खेलोगे। आओ कंप्लीट करो। अगर मेयर कराची कहता है कि मैंने 1 अरब रुपए खर्च किए हैं स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर, तो आप आके बताएं कि आपने अपने टाउन के अंदर कितने रुपए खर्च कर लिए। इसका जवाब नहीं है इनके पास। हमारे क्लिक के मंसूबों पर जाके अपनी तख्ती लगाते हो, अपनी फोटो लगाते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। मुझे खुशी है, काम करके दिखाओ। लेकिन ये जो है ना सियासी बातें, ये वक्त आ गया है कि मुनाफिकत को अब हम खत्म करें और तरक्की के ऊपर पॉलिटिक्स करें। ये करके आ रहा हूँ। आपने इत्तेहाद की बात की, आपने पीटीआई को भी साथ मिलाया, बाद आपने जमात इस्लामी को भी मैसेज की, एमसीए को भी मैसेज की, लेकिन आपकी जो आपके सामने जो बाकी हुकूमत वो इत्तेहाद से काफी दूर भागती। आपने इस तहरीके को किया है, इस तरह से लश्कर करने के लिए पंजाब में क्या हुआ, क्या लगता है कि कैसा कि सिंध जो है वो इत्तेहाद की तरफ जाता है, पंजाब इत्तेहाद को तोड़ने की तरफ जाता है? सिंध की तो ये खास बात है माशाल्लाह। मैं पंजाब के बारे में नहीं कहूँगा कुछ, लेकिन ये मेरे सूबे की, मेरी मट्टी की खास बात है कि दिलों को जोड़ता है। सूफियों की धरती है ये कराची। इसीलिए थोड़ी है पाकिस्तान का वाहिद कॉस्मोपॉलिटन शहर कि यहाँ पे हर रंग, नस्ल, मजहब, जबान बोलने वाले लोग रहते हैं। ये हमारे शहर की खास बात है। तो हमने किसी फर्द के ऊपर इस शहर में आने पर पाबंदी थोड़ी है। वो इलेक्टेड नुमाइंदा है, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है। अगर वो इस शहर में आना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, 100 बिस्मिल्लाह आए। उसका जो हक है, उसका प्रोटोकॉल, उसकी सिक्योरिटी, वो तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोई सड़क ब्लॉक करे, कोई लोगों को तकलीफ हो, ये नहीं होनी चाहिए। बाकी वो आना चाहते हैं आए, 100 बिस्मिल्लाह। मैं तो ऑफर किया केएमसी का दफ्तर हाजिर है, हमारे पास आ जाए, हमसे वो कर लें। तो एनीथिंग दैट लीड्स टू हार्मनी, एनीथिंग दैट लीड्स टू बेटर पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा यही जद्दोजहद करती है कि चीज़ें बेहतर हों। लड़ाई झगड़े से मसाइल हल नहीं होते, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती। और जिस तरह हम उनको ये ऑफर करते हैं, उसी तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब आएंगे इस शहर, इस सूबे, तो हमारे जो कवायद हैं, हमारे जो कवानीन हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है हम कि इंशाल्लाह वो फॉलो करेंगे। जी, ये फरमाइएगा, आप खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि गटर के ढक्कन लगाना मसला नहीं है, इसकी चोरी का मसला है। तो इस ज़मीन में अभी तक आपने क्या किया है? ऐसा कोई मटेरियल आया है जिसको चोरी न किया जाए? यार चोरी तो हर चीज़ हो सकती है, लेकिन दो तरह की चीज़ें, एक फाइबर के गटर के ढक्कन है और एक कचरे से भी गटर के ढक्कन बन रहे हैं। हम दोनों चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं। जो फाइबर वाले हैं वो हमने लगाए हैं कराची जू में रिसेंटली। उसकी क्वालिटी को चेक किया जा रहा है कि वो कितने सस्टेनेबल हैं, और अगर
सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट एन इशू, उसकी स्ट्रेंथ का इशू नहीं है, तो हम उसको शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रेप्लिकेट करना चाहेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूँ कि जब तक वो चीज़ नहीं होती, जहाँ गटर का ढक्कन खाली है 1334 पे कॉल करें, वाटर बोर्ड वो ढक्कन लगाएगी। हर यूसी चेयरमैन को, ये यूसी चेयरमैन खड़ा है, मैं यूसी चेयरमैन हूँ, यूसी चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है, इजाफी 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? कि उनको मेयर के पास ना आना पड़े, उनको डिप्टी मेयर के पास ना आना पड़े, उनको मिनिस्टर के पास ना जाना पड़े, वो उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए वो मसला हल करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिसंबर के महीने में तमाम यूसीओं को, चाहे वो पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन हो, जमात इस्लामी के हों, पीटीआई के हों, नून लीग के हों, जेयूआई के हों, बिला तफरीक हर यूसी को ये पैसे दिए गए हैं और अभी जनवरी में फिर, फरवरी में फिर दिए जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसको जो काम करने की ज़रूरत है वो काम करे, ताकि जो बुनियादी मसला है लोगों का वो हल हो सके। क्या कुछ सिखा के उनको भेजेंगे या क्या आप उनको वेलकम करेंगे? और दूसरा कल जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उनकी बर्थडे है, उस पर आप क्या पैगाम? ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले जमहूरी मुंतखब वज़ीर आज़म थे। आज हम अपने दिफा पर इतना फ़ख्र करते हैं, उस दिफा को इतना तक़वियत देने में भुट्टो साहब का जो किरदार है वो सबके सामने है कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बनने की बुनियाद जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी। आईने पाकिस्तान हो, स्टील मिल हो, बेशुमार काम है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी सियासी बसीरत और दानिशमंदी के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम के लिए किए। और इसीलिए आज भी लोग शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज भी याद रखते हैं। तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के लिए ये तजदीद अहद व वफ़ा का दिन होता है। ये वो दिन है जब हम एक बार फिर कमिट करते हैं कि जो भुट्टो साहब की सोच थी, जो भुट्टो साहब के अफकार थे, आवाम के साथ दोस्ती के, आवाम के साथ मोहब्बत के, आवाम के मसाइल को हल करने के, उसके साथ हम तजदीद अहद व वफ़ा करेंगे और आवाम के मसाइल को हल करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करेंगे। जो आपने आफरीदी साहब की बात की, आफरीदी साहब को मैं मशवरा यही दूंगा कि सर ज़िंदगी बड़ी छोटी होती है और सियासी ज़िंदगी और भी छोटी होती है। आपको अल्लाह ताला ने जो मौका दिया है, आपको जो अल्लाह ताला ने मनसब दिया है, इस ज़िंदगी का भी और सियासी ज़िंदगी का, इंतज़ामी ज़िंदगी का, एक उस मसरफ़ को सर्व करें और वो मसरफ़ है आवाम की खिदमत करना, आवाम के मसाइल को हल करना, जिस तरह भी कर सके वो हम भी करें, वो आप भी करें। क्योंकि आवाम को जो परेशानी है, आवाम को जो तकलीफ़ है, वो एहतजाज करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, जलाओ घेराव से कम नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। उसके लिए हमें सियासी लीडरान को साथ बैठने की ज़रूरत है, इंगेज करने की ज़रूरत है, ताकि इंगेजमेंट के साथ, डायलॉग के साथ इन मामलात को कानून के मुताबिक हल किया जा सके। किसी की ज़ात पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम से बढ़कर नहीं है, किसी की ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम का सोचना चाहिए, और जो इख्तियार इस आवाम ने हमें दिया है आइन के तहत ऊपर वाले की रज़ा से, उस इख्तियार को हमें आवाम की खिदमत के लिए सर्व करना चाहिए, किसी और मकसद के लिए नहीं। देखें, ये जो स्टेज है ना, ये कांटों का स्टेज है। बहुत इज्जत है, बहुत मर्तबा है, लेकिन साजिशें भी उतनी होती हैं। हर शख्स मेयर बनना चाहता है, हर शख्स वजीर बनना चाहता है, वजीर आला बनना चाहता है, वजीर आज़म बनना चाहता है। मेरा ये मानना है कि साजिश हमेशा ज़ातियात पर मबनी होती है, और जब लोग लीडरान ज़ातियात का सोचे ना, तो मुल्क को मिल्लत का फ़ायदा नहीं होता। तो मुझे नहीं पता साजिश हो रही है नहीं हो रही, लेकिन ये मुझे पता है कि जहाँ मैं शहर को कामयाब होता हुआ देखना चाहता हूँ, जहाँ मैं इस शहर की खिदमत करना चाहता हूँ, वो खिदमत मुझे सुरखरू करेगी, मेरी सियासी जमात को सुरखरू करेगी।
तो अगर मेरी सियासी जमात सुरखरू होगी, अगर मैं सुरखरू होऊंगा, तो बहुत सारे लोगों की सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो नेचुरली हर शख्स अपनी बका का सोच रहा होता है। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि साजिशें करने से, बोरियों से, इन चीज़ों से मसाइल हल नहीं होते। अगर मैं 2 काम कर रहा हूँ तो आप 4 काम करके दिखाएं। अगर आप 4 काम करेंगे तो मैं 8 काम करके दिखाऊंगा। अगर मैं 8 काम कर रहा हूँ तो आप 12 काम करके दिखाएं। इससे ये जो हेल्दी कंपटीशन है ना, उससे हम अपनी आवाम के मसाइल को हल कर पाएंगे। ये साजिशी अनासर से जो है ना कुछ माजी में हुआ है, ना आज कुछ हो रहा है, ना मुस्तकबिल में कभी कुछ होगा। मेरा फर्नीचर का कारोबार है ना। मेरी बात यार, कोनो कॉर्पस तुमने फैसला खुद ही कर दिया कि वो माहौल दोस्त नहीं है। खुद कहा ना अपने सवाल में, उस कोनो कॉर्पस के कटने पे भी हंगामा होता है। जड़, उसको जड़ से अगर निकालेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। फिर तो कहेंगे मैं जड़ से निकाल के कोई अपने फार्म हाउस पे लगा दिए। ये नीम का दरख्त किसी नेक आदमी ने लगाया था ना, वो पीछे बरगद का दरख्त किसी नेक आदमी ने लगाया था ना। तो मैं तो चाहता हूँ ये नीम हो, बरगद हो, गुलमोहर हो, बादाम हो, फूल और फलों के दरख्त हो। तो मसला ये है कि शहर में 20-25 लोग हैं जिनका कोई काम धंधा नहीं है। कुछ भी कर लो ना तो वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। कोनो कॉर्पस ना माहौल दोस्त है और ना इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्त है। इसलिए हम चाहते हैं कि उसको ख़त्म किया जाए और ख़त्म करके माहौल दोस्त और जो लोकल आपके पौधे हैं हम उनको लगाएं। हम ये काम करना चाहते हैं, लेकिन यकीन जाने जहाँ काम शुरू करते हैं, कोई एक बंदा वीडियो बनाता है और कहता है यार ये देखो लकड़ी का कारोबार किसी का चल रहा है। कोनो कॉर्पस की कोई वैल्यू है लकड़ी की? मुझे बताओ ज़रा, उस लकड़ी का क्या होगा? एक्सपोर्ट हो रही है क्या? उससे कोई डॉलर्स कमा रहे हैं उसको? तो मैं इसलिए कहता हूँ हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। सोचना ये चाहिए ये नीम, बादाम, बरगद, अमरूद, गुलमोहर, चीकू, जामन, अपना पीलू, खजूर, ये जो लोकल हमारे दरख्त हैं यार, ये लगाएं। ये पता नहीं कोनो कॉर्पस किसने लगाए थे, कब लगाए थे, क्यों लगाए थे और उसके अज़ाइम क्या थे। बहुत शुक्रिया। हाँ सर, एक सवाल आगे। ये फ्रेयर हॉल बहुत अच्छा है और जिस तादाद में वीकेंड्स पे वहाँ लोग आते हैं ना, वो इस बात का सबूत है कि फ्रेयर हॉल माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर हो चुका है। लेकिन मैं हमेशा अपनी टीम को ये कहता हूँ कि चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो हम उसमें लगे हुए हैं और मज़ीद उसको बेहतर भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू।